Welcome, dear students. In our previous class, we study about minerals and their mode of occurrence. Now, in today's class, we'll study about the classification of minerals. Students, you are familiar about the minerals. Minerals, as you know, are the naturally occurring substances that have uniform chemical composition and ordered atomic arrangement. So how are they classified? Geologists classify minerals according to their chemical composition and crystalline structure. Some minerals, contain only one element like limestone, and while others contain more than one element. Generally, minerals are classified into two categories. That's metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals are further subdivided into two categories. That's ferrous and non-ferrous. Ferrous that containing iron, while non-ferrous containing elements other than iron. So we have metallic minerals, iron, nickel, cobalt, etc. These contain iron content. We have metallic minerals that are non-ferrous, copper, lead, tin, bauxite. And we have also one more category, that is precious metals, that are gold, silver, platinum. Likewise, the non-metals. Non-metals, we have mica, salt, potash, sulfur, granite, limestone, marble, sandstone, etc. So what's the difference between the two? दोनों में फर्क क्या है? Metallic minerals. Metallic minerals are those minerals which can be melted to obtain new products. Metallic minerals are those minerals which can be melted to obtain new products. Like this. अब देखिए आयरन, मैग्नीज को, निकल, कोबाल्ट या कॉपर, इनको हम मेल्ट कर सकते हैं और दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हैं. These are generally found in igneous and metamorphic rocks. जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा, ये जो मेटेलिक मिनरल्स है जनरली ये या इग्नस रॉक्स से हासिल किए जाते हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स. इस तरह नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं which are those minerals which do not yield any new product on melting. अगर हम इनको मेल्ट करेंगे तो वो कोई नया प्रोडक्ट, जैसे साल्ट है, माइका है, इनको मेल्ट तो नहीं कर सकते, करेंगे भी तो नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे. These are generally found in sedimentary rocks. तो ये जो हम हासिल करते हैं जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स. तो मेटेलिक मिनरल्स को हम इग्नस या मेटामॉर्फिक रॉक से हासिल करते हैं, वाइल एज जो नॉन मेटेलिक वो जनरली सेडिमेंट्री रॉक से हासिल किए जाते हैं. अब जो फेरस है, जैसे मैंने कहा, मेटेलिक मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फेरस एंड नॉन फेरस. तो फेरस जो है ये वो मेटल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स जो आयरन कंटेंट जिसमें होते हैं. तो इसी तरह नॉन फेरस जो होते हैं उनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, अदर एलिमेंट्स होते हैं. जैसे आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, कोबाल्ट एक्स्ट्रा, ये मेटेलिक मिनरल्स होते हैं या फेरस मेटेलिक मिनरल्स. इसी तरह जैसे कॉपर, लेड, जिंक, टिन, बॉक्साइट, तो ये नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स हैं. तो जो फेरस मिनरल्स होते हैं, these are used in iron and steel industry. Some minerals are used as an alloy in making different types of steel. तो जो ये फेरस मिनरल्स होते हैं ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं
तो उसमें कुछ ऐसी बहुत सारे जो फेरस मेटल्स होते हैं, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टील बनाने में इस्तेमाल होती हैं, अलॉय बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह जो नॉन फेरस होते हैं, जैसे मैंने कहा उनमें कोई आयरन कंटेंट नहीं होता है, जैसे कॉपर है, जिंक है, लेड है, अल्मीनियम है, तो ये इनमें जो आयरन कंटेंट नहीं होता है, तो ईच मिनरल हैज़ इट इज प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर यूटिलिटी। तो हर किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर यूटिलिटी है, अपना इस्तेमाल है। सम मिनरल्स आर वैल्यूएबल अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, तो उनकी इस्तेमाल के तहत उनका जो वैल्यू है वो है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस किस्म का उनका जो यूजेज होता है, तो उसी तरह उनकी वैल्यू भी होती है। तो स्टूडेंट्स, these were the two categories of minerals that we have studied. So, metals and non-metals classification. So, let us now try to understand the distribution of these metals and non-metals. First of all, we will try to distribute this ferrous minerals. तो फेरस में जैसे मैंने कहा आयरन है, आयरन को हम देखेंगे। आयरन और जो है, क्योंकि जो आयरन हम कहते हैं, तो हर कोई जो मिनरल है वो ओर की सूरत में हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया, जो मिनरल्स है दैट आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। और मैंने आपको समझाया पिछले क्लास में, और क्या होता है, जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, जब ज़मीन से हम निकालते हैं, फिर उसमें कितनी कंटेंट होती है, पर्टिकुलर जो आइटम होता है, तो उसमें कंटेंट क्या होता है, तो उसी हिसाब से उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है। तो ये जैसे आयरन की बात करेंगे, तो आयरन भी हम ओर की सूरत में ज़मीन से निकालते हैं। तो आयरन जो है, ये बैकबोन मॉडर्न सिविलाइजेशन का है, ये आप जानते हैं। जो आयरन है, इसकी यूज़ यूनिवर्सल है, यानी दुनिया में हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग जो है आयरन, ये मैन्युफैक्चर मशीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर जो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स है उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यानी जो जनरल यूज़ होता है उसका, आयरन हर जगह पर इस्तेमाल होता है। तो जब हम आयरन को एज ओर जब हम निकालते हैं, तो 4 वेराइटीज़ ऑफ आयरन हम निकालते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है वो आयरन की वो, और उसमें जो आयरन कंटेंट होता है 72% होता है। इसी तरह हम जो एक और जो वेराइटी है, दैट्स हीमेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद हीमेटाइट, तो उसमें 60 to 70% आयरन कंटेंट होता है। इस तरह लिमोनाइट में 40 to 60% होता है आयरन कंटेंट, एंड सिडराइट, तो उसमें 40 to 50% आयरन होता है। तो जो आयरन, अब मैंने आपको बताया, आयरन और जो है वो हम जो 4 वेराइटीज़ में हासिल करते हैं। तो मुख्तलिफ ऑन द बेस ऑफ आयरन कंटेंट उसमें कितनी होती है। तो ये आयरन जो है मुख्तलिफ जगहों पर हिंदुस्तान में पाया जाता है, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो इस तरह आयरन तकरीबन बहुत सारे स्टेट्स में पाया जाता है। तो इंडिया में आयरन की एक सफिशेंट जो मिकदार अवेलेबल है। तो दूसरा जो है, जैसे मैंने कहा बॉक्साइट, ये भी फेरस है। तो बॉक्साइट क्या है, ये और है किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम बॉक्साइट और से हम एल्युमिनियम ऑब्टेन करते हैं। एल्युमिनियम इज लाइट मेटल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स। ये एक हल्का सा मेटल है जो एरोप्लेन्स में बनाने में इस्तेमाल होता है, या यूटेंसिल्स में इस्तेमाल होता है, या जो हाउस होल्ड गुड्स होते हैं उनमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। तो इंडिया के पास जो वास्ट रिजर्व्स है जो बॉक्साइट के, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है।
लेकिन जो मेनली जो इसकी ऑकरेंस है वो है झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। इस तरह जो हम देखते हैं कॉपर जो नॉन फेरस है, तो कॉपर को भी हम देखते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हिंदुस्तान में, कहाँ कहाँ पाया जाता है और कॉपर की अहमियत क्या है। तो कॉपर जो है इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कॉपर के जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं या इलेक्ट्रिक वायरस बनाए जाते हैं, और ये एलाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एलाई होता है जब हम दो मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं। तो इंडिया में तो ज़्यादा कॉपर रिजर्व्स नहीं है, तो और न इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन भी होती है। जो इंडियन कॉपर और जो है वो तकरीबन 1% कॉपर कंटेन करते हैं, जो एवरेज है यूनिवर्सल एवरेज से काफ़ी कम है इंटरनेशनल एवरेज से, जबकि इंटरनेशनल एवरेज 2.5 है। तो 90% जो कॉपर इंडिया में पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, इसी तरह झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। सो अगर हम देखेंगे जो कॉपर प्रोडक्शन कंट्री में है वो काफ़ी कम है, लेस देन ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। जो हमारी ज़रूरत है उससे काफ़ी कम तादाद में कॉपर यहाँ अवेलेबल है या प्रोडक्शन होती है उसकी। सर हम एक और जो माइका की बात करेंगे, नॉन फेरस है। ये माइका जो है नॉन मेटल है, जैसे मैंने कहा नॉन मेटल्स जिनमें प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं ऑन मेल्टिंग। तो ये तो माइका जो है, माइका हैज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड हैंस इट्स मेजर यूज इज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो इंसुलेटर के तौर पर एक काम करता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। इट हैज़ द quality to withstand high voltage. Mica occurs in several states of India, but most of the reserves and production are confined to Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh and Rajasthan. तो इसी तरह एक और जो है लाइमस्टोन, ये भी जो हम देखते हैं ये भी नॉन मेटल है। Limestone is found in associated with rocks composed of calcium carbonate or calcium and magnesium carbonates. It is of sedimentary origin and is found in almost all geological formations except in the Gondwana. तो यूज जो होता है सीमेंट इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल होता है, और या जो आयरन स्मेल्टिंग या केमिकल इंडस्ट्रीज में उसका इस्तेमाल होता है। Students, I think it's enough for today. In my next class, I will tell you about one more, that's energy resources. That's one more category of these minerals. So, thank you very much.